Monica, you can do solo, okay? हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हरे ओ जी दादाजी, हरे ओ जी दादाजी, कमर तू नहीं, तुम्हारा बिना क्या ये घूट तू नहीं। हरे ओ जी प्यारा जी, हरे जी प्यारा जी, सहारा भी ना बीज उगतु नाति, सहारा भी ना बीज उगतु नाति। जगत को संगे दुख, जगत को संगे दुख, केवल सत्संगे जसु, केवल सत्संगे जसु। दादाजी नो हस तो, दादाजी नो हस तो, शमने दर्शन था सुख, शमने दर्शन था सुख। हीरा मोती महाराजे, हीरा मोती महाराजे, समृद्ध सतिया वीना डलडू ठार तू नाथी, समृद्ध सतिया वीना डलडू ठार तू नाथी। हरे ओ जी दादाजी, हरे ओ जी दादाजी, તમારા વિના ક્યાંય ઘૂટતું નથી, તમારા વિના ક્યાંય ઘૂટતું નથી। दुनिया भर मालूखों लागे, दुनिया भर मालूखों लागे, सत्संग विना सुनो लागे, सत्संग विना सुनो लागे। बिरु दिवस रात जागे, बिरु दिवस रात जागे, ज्ञानी भवनी भावट वांगे, ज्ञानी भवनी भावट वांगे। रुको अतिक्रमना जी, रुको अतिक्रमना जी, आत्म रमनावी क्याय रुच तू नाथी, आत्म रमना वीना क्याय रुच तू नाथी। हरे ओ जी दादाजी, हरे ओ जी दादाजी, हरे ओ जी प्यारा जी, हरे ओ जी प्यारा जी। जय सच्चिदानंद। Guys, is very good. Thank you. Now kalam boliye, please. हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मने कोई पण देदारी जीवात मानो किंचित मात्र पण अहम ना दुबे ना दुबाय के दुबा प्रते ना अनुमोदाय, એવી પરમ શક્તિ આપો। મને કોઈ પણ દેદારી વાત માનો, કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના તુબે એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો। હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ના દુબે ના દુબાય કે દુબા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો। મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ના દુબે એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો। હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેદારી ઉપદેશક, સાધુ, સાધ્વી કે આચાર્યનો
अवनवाद, अपराध, अविनय न करने की परम शक्ति आपो। हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા के प्रति जीवात्मा के प्रति अभाव तिरस्कार न किया जाए, न करवाया जाए कि कर्ता के प्रति न अनुमुदाय एवी परम शक्ति आपो। हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ કઠોર ભાષા, તંતીલી ભાષા ના બોલી જાય, ના બોલવાઈ જાય કે બોલવાના પ્રત્યે ના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો। કોઈ કઠોર ભાષા, તંતીલી ભાષા બોલે તો મને મૃદુ રુજુ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો। हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ સ્ત્રી, પુરુષ, અગર નપુંસક ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધમાં કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાસ સંબંધી દોષો, इच्छाओं, चेष्टाओं या विचार संबंधी दोषों न किया जाए, न करवाया जाए कि कर्ता के प्रति न अनुमुदाय एवी परम शक्ति आपो। મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો। હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ રસમાં લુબ્ધપણો ન કરાય એવી પરમ શક્તિ આપો। મને સામરસી ખોરાક લેવાની પરમ શક્તિ આપો। હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ જીવન તત્વ મૃત્યુ પામનારો કોઈનો પણ કિંચિત માત્ર પણ અવનવાદ, अपराध, अविनय न किया जाए, न करवाया जाए कि कर्ता के प्रति न अनुमुदाय एवी परम शक्ति आपो। हे दादा भगवान, મને જગત કલ્યાણ કરવાનો નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો। જય સચ્ચિદાનંદ। જય શ્રી મોનિકા, 1 મિનિટ વિડીયો ઓન કરો તો 1 જ મિનિટ। હા। Okay, now you can shut it off. Okay, જય સચ્ચિદાનંદ કેશવ દાદા। જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ। શ્રીમંત બોલાય પ્લીઝ। નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો નમો આયર્યાણમ, આયર્યાણમ, નમો ઉવજ્જાયાણમ, નમો નમો વત્સાયાણમ, ઉદ્દાયાણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો નમો લોય સવસા, સવસા, ऐसो पंचन मुक्कारो, એસો એસો પંચ પંચન મુખારો, સવ્વ પાવપણાસણો, સવ પાવપનાસન, મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ, મંગલાનાં મંગળાણમ ચ સર્વૈસ્મિં સર્વેસિં, પરમમ હવૈ મંગલમ, પરમં હવૈ મંગલમ। ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ ઓમ નમો ભગવતે ભગવતે વાસુદેવાય, વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય। જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ। જય શ્રેયા। हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँ, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोहबत से और कुसंग से कायम दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र सेवा के लिए करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र, निष्ठावान और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ, और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद।
दक्ष अनम्यूट करो। हे दादा भगवान, जो पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं आते हैं, जो अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का संकल्प लेता हूँ। आप ऐसी कृपा करना कि जिससे मेरे दर्शन रूप के आवरण टूट जाए, मैं पढ़ाई सही ढंग से करूँ, ऐसी शक्ति दीजिए। जय सच्चिदानंद। मोनिका जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हम हैं आपके आपके बच्चे, बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के के हैं हैं सच्चे, सच्चे, फिर भी हैं कच्चे, फिर फिर भी भी है हैं अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे। अच्छे। जय सच्चिदानंद। दक्ष हे श्री रत्न रघुवन पलगो दक्ष लगे। हे श्री रत्न रघुवन परमानेंट टेम्पररी। हे श्री रत्न रघुवन प्रियल्लु दक्ष रिलेटिव अजय सच्चिदानंद। दक्षिबा जय सच्चिदानंद। हे શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે જુદા છો એ દક્ષિબા જુદા છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો એ દક્ષિબા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો એ દક્ષિબા ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. दिस इज वेरी वेरी गुड। ओके, तो अभी तक बच्चे लोग आपने 3-4 वीक से वी आर डूइंग हेल्थ, राइट? खाने का पक्का हो गया, एक्सरसाइज का पक्का हो गया, ब्रशिंग का और प्रेयर का, खाने सब पक्का हो गया। तो आज से विल स्टार्ट स्टडीज। ओके, अपना नंबर 2 गोल। हाँ तो उसमें ये लिख लो आप कि उसमें, ओके ओके, पुलिना के माउथ है इसे, ओके, उसमें स्टडीज में 4 चीज अपने को देखने का है एवरीडे का है। हैप्पीनेस, सिंसियरिटी, सेटिस्फैक्शन। आपका स्टडीज के लिए, गोल के लिए एवरीडे ऐसा होता है कि नहीं? यानी हैप्पी, सिंसियरिटी, सेटिस्फैक्शन, गोल स्टडी का डेली होता है कि नहीं? ओके, वो जरा बस चर्चा करेंगे उसके बारे में। और स्टडीज में क्या आता है? स्कूल, स्कूल का होमवर्क, घर के आके होमवर्क, देन एक्स्ट्रा स्टडीज, तो वीक सब्जेक्ट होता है और एग्जाम के रिवीजन होता है, और नेक्स्ट डे प्रिपरेशन। आज ये किया था तो कल ये करने वाला है। ओके, दैट इज कॉल्ड स्टडी का प्रिपरेशन, सारा दिन का। ओके, मालूम पड़ गया सबको? हाँ अच्छा, और दूसरी बात है, अभी एग्जाम आने रही है। श्रेया 30th, मोनिका 30th। नहीं, अभी मेरा खत्म होने वाला है एग्जाम। रियली? ओह या हाँ, ओके। आने वाला मंडे और दादा हाँ, बोलो दक्ष। दादा, कल मेरा आखिरी पेपर है तो ओके, वेरी गुड। तो मोनिका, व्हेन इज योर फाइनल पेपर? फाइनल पेपर वो अभी रिजल्ट्स नहीं है, दिया है। अभी 2 एग्जाम बाकी है, मंडे को खत्म होगा। वही बोलता हूँ, मंडे, नेक्स्ट मंडे को। अभी आने वाला मंडे, हाँ। हाँ, तो ये वीक में एक बाकी है और नेक्स्ट वीक में मंडे ने हो गया, राइट? हाँ हाँ, ओके, ये वीक में कब है? ये वीक में थर्सडे है, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। और मंडे? मैथ्स।
ओके, वेरी गुड। ओके, हिताक्षी में आपका क्या स्केड्यूल है? नहीं सुनाई देता अनम्यूट। है। अनम्यूट। हाँ, मैंने स्केड्यूल तो बना है कि इस वीक में पहले सारे सब्जेक्ट लर्न करके खत्म करना है, उसके बाद रिवीजन करना है। नो नो, कब एग्जाम है? एग्जाम एग्जाम 6 अप्रैल को है। कब? 6 अप्रैल। 5 अप्रैल। और श्रेया? 26 को मेरा ओके, पहला एग्जाम ओके, है। तो नो प्रॉब्लम। हम पूछने वाला था कि अभी सत्संग कंटिन्यू करेगा कि तो करेंगे, क्योंकि मोनिका विल बी देयर। दक्ष, आप तो बाहर नहीं जाने वाले हैं ना? दादा जाने वाला हूँ। कब? दादा 20। ओह, ओह, तो सूरज जाने, ओके, नो प्रॉब्लम। तो फिर देखेगा कि मोनिका विल बी देयर। श्रेया, आप आ सकती है एग्जाम टाइम में? पता नहीं। अ, बी हिताक्षी बा? फ्रैंक, नो प्रॉब्लम। हाँ। बी फ्रैंक, नो प्रॉब्लम। ना बोलेंगे तो कोई सू नहीं करने वाले आप। और देखो बच्चा लोग, मेरा स्टैंडर्ड है रात को 9 बजे के बाद स्टडी नहीं करने। So you must be prepared, because after that nothing goes in your brain. Okay, कुछ भी तुम pretend करो तो भी कुछ भी फायदा नहीं होता. So 9 to 9:30 will be very refreshing. uh, ये दादा का सुन के जाए सो जाएगा, will be very helpful next day. तो कशिव दादा को तो बहुत एक्सपीरियंस है ऐसा. Okay, anyway, so you decide what you want to do. Anyway, अभी तो at least Monica is there, so we'll talk about Monica. तो 1-to-1 ज्ञान देगा, no problem. Right, Monica, you'll be here ना, क्योंकि खुशी का एग्जाम बाकी है ना. Okay, no problem. अप्रैल Okay, 9 तक। okay. Okay, तो आज कैसा रहा स्टडी में, कुछ बोल सकते हैं श्रेया? जो क्राइटेरिया हमने बोला ना, हैप्पी? हाँ। हाँ जी प्रिया, मैं स्टडी में हैप्पी रही थी। और मेरा सब सब्जेक्ट्स और जो मैंने स्केड्यूल बनाया था वो सिंसियरिटी से फॉलो हुआ था। और मैं सेटिस्फाइड हूँ वेरी गुड. आज। दक्ष? जय सच्चिदानंद। आज मैं हैप्पी हूँ और आज मैंने कल मेरा ईवीएस का पेपर है तो पूरी प्रिपरेशन कर ली है। वेरी गुड. हिताक्षी बा? हाँ जी सच्चिदानंद। आज मैं अनसेटिस्फाइड हूँ क्योंकि कल केरनपुर से आए तो आज मैं थक गई था। आज मैंने सिर्फ रेस्ट ही लिया था और अभी शाम को थोड़ी देर पढ़ाई की इसीलिए। आर यू हैप्पी? नहीं, ओके, तो क्या इम्प्रूवमेंट करने का है? मतलब अभी ज्यादा पढ़ाई करनी है। आज पढ़ाई कुछ भी नहीं हुई थी। ओके, मोनिका, आपको तो कुछ पूछने का ही नहीं है, 2 सब्जेक्ट बाकी है, इनफ टाइम है आपको करने का. ओके, नो प्रॉब्लम. ओके, तो अभी तो आई थिंक ये सब्जेक्ट लिया, पर दैट इज ओके. 2 वीक, 1 वीक चलेगा, क्योंकि अभी इट विल बी गुड फोकस फॉर 1-2 वीक्स फॉर एटलीस्ट रेया एंड हिताक्षी. ओके, और खुशी होपफुली एंड करिश्मा. ओके, सो केशव दादा, आपने सुना है, सो अभी थोड़ा बताइए कि स्टडीज में सिंसियरिटी, सेटिस्फैक्ट्री कब होता है, कैसे होता है, क्या करना मांगता है? आपको तो दादा ने कट कट। अ, आपने तो दादा को तो आशीर्वाद था कि सांप को पढ़ के जाता है तो सुबह सब अच्छा रहता था स्टडीज में. जय सच्चिदानंद. जय सर। दादा की जिनके ऊपर ब्लेसिंग्स हो तो फिर तो बात ही और है। और आप तो सब लोग लकी है, बहुत लकी है कि दिन रात दादा की बातें सुनने को मिलती है। और दादा किस तरह से हर एक बात में सिंसियर रहते थे, हैप्पी रहते थे, वो हमने ऑब्जर्व किया है, हमने देखा है दादा को।
बहुत करीब से देखा। तो हम जिसको सुनते हैं, जिनको देखते हैं, जिनकी बातों को हम ध्यान से सुनते हैं, तो वो सब गुण हमारे में प्रकट होते हैं। अगर आप उनके ऊपर लक्ष्य दोगे, तो जो जो चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं, सुनते हैं, और हम देखते हैं कि दादा भगवान कैसे करते थे, दादा भगवान हमको कैसे ट्रेन करते थे, तो वो सब बातों का जो अनुभव होता है, वो अनुभव सबके लिए बहुत बड़ा काम होता है। जैसे दादा भगवान ने खुद अनुभव किया, तो उनका पूरा ज्ञान अनुभव वाला था। इसकी वजह से उनके जो भी अनुभव हम सुनते थे या हमको दादा भगवान वो बताते थे, तो हमको बहुत प्रैक्टिकली असर करते थे। तो दादा की जो भी बातें हैं, दादा की जो पढ़ाई करने का सिस्टम समझाते थे, या सिंसियरिटी की बात समझाते थे, तो वो किस तरह से हर एक सब्जेक्ट को कैसे प्यार से देखना चाहिए, किसी जगह पे हमको ऐसा बोरिंग नहीं लगना चाहिए। और कितनी बार ऐसा होता है, ये सब्जेक्ट तो मुझे आता ही नहीं है, ये तो मुझे समझ में नहीं आता है। तो जैसे ही आप वो चीज़ बोलते हो, तो वैसे वो चीज़ काफी मीलों दूर चली जाती। हमारे मुंह से एक भी वाक्य ऐसा नहीं निकलना चाहिए कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये बहुत हार्ड है, या मुझे ये समझ में नहीं आता है। नहीं, कुछ भी कितना भी डिफिकल्ट चीज हो, वो दादा भगवान को साक्षी में बोलने का, हे दादा भगवान, आप मुझे सूझ दो, आज मुझे ऐसी शक्ति दो ताकि मैं ये सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ सकूं, और मुझे ऐसी सिंसियरिटी दो ताकि मैं हर एक पल, हर घड़ी, हर एक बात में टाइमली रहूं, टाइम से उसको स्टडी करूं, और उस सिंसियरिटी से मैं आगे बढ़ूं। तो दादा भगवान की ट्रिमेंडियस ब्लेसिंग्स मिलेगी। ये बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ी समझ है। अगर हमको ये हाथ में आ गई, तो आपको हर एक बात इजी हो जाएगी। हमको सबसे पहले दादा भगवान के ऊपर 200% कंप्लीट फेथ होना चाहिए कि दादा भगवान ने जो वाक्य बोला है, जो दादा भगवान ने बोला है कि सिंसियरिटी से हम अगर पढ़ेंगे, तो फिर तो सब देवी देवता भी आपको हेल्प करेंगे। जो सब्जेक्ट बहुत हार्ड होगा, वो भी आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि मिरेकल्स डू हैपन, मिरेकल्स डू हैपन। तो हर एक बात में क्या होता है कि सबसे पहले हर एक चीज को पहले प्यार करना चाहिए, हर एक चीज को पहले पसंद करना चाहिए। और हर एक चीज को पसंद करने से, पॉजिटिव रहने से, उसको प्रेम करने से, तो अंदर से वो स्लोली स्लोली हर एक संजोग में आपको हैप्पीनेस फील होगा। तो हैप्पीनेस जैसे आ गया, वो आपको गॉडली तरफ लेके जाएगा। अगर आप बहुत गुस्से में रहोगे, या बहुत सीरियस रहोगे, तो जो चीजें आपके पास इजीली आनी चाहिए, वो आएगी भी नहीं। हमेशा अपना स्वभाव हंसमुख रखना चाहिए, खिलने, हंसना चाहिए, और हर एक चीज में हैप्पी रहना चाहिए। तो जो आप अगर आस खुद हैप्पी रहोगे, तो आपके आसपास जितने भी सराउंडिंग में सब लोग होंगे, वो हैप्पी होंगे। तो हमारी हमारी वजह से आसपास का वातावरण भी हैप्पीनेस हो जाता है, और उन सब हैप्पीनेस का असर हम पे आता है। तो सब केश लोग आजू बाजू हैप्पी होंगे, तो हम भी सबका असर हमारे पे होगा, तो हम भी हैप्पी हो जाएंगे। तो सबसे केशव दादा, हैप्पी होना चाहिए। हाँ जी। ये श्रेया और इताक्षी बाबू बहुत टेंशन लेके फिरते हैं, तो टेंशन लेके तो अच्छा पढ़ेगा तो भी एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा ना। श्रेया। हाँ, 100। रजनी दादा, हाँ, बोलो। मैं टेंशन नहीं लेती हूँ। ओ वेरी गुड, वेरी गुड। ओनली श्रेया का नाम श्रेया टेंशन में आती है। नहीं, नहीं। तो नहीं, नाउ 9 बजे के बहुत बाद अच्छा। क्या स्टडी कर सकते हैं श्रेया? टेंशन तो रहना ही नहीं चाहिए। टेंशन तो जिसके ऊपर दादा भगवान का हाथ है, तो उसके ऊपर टेंशन किस बात का। आपके पास राजा आपके साथ खड़ा हो, ब्रह्मांड का स्वामी आपके साथ खड़ा हो, तो फिर उसके बाद कुछ डर लगता है? श्रेया नहीं बोलेंगी। हम्म, हिताक्षी भाई बोलो। हिताक्षी भाई, आपको डर मैंने लगेगा? ये टेस्ट दिया था, ओके, कि आप टेंशन में क्या नहीं जानने के लिए, सो यू यू गिव द राइट आंसर। श्रेया तो टेंशन में ही चलती रहती है। नहीं। अभी अभी केशव दादा अभी नहीं बोली। हाँ, नहीं, पर अभी अभी वेरी उनके वेरी गुड श्रेया। उनके हास्य में से लगता है कि अभी वो टेंशन में नहीं है। नहीं तो राइट, इतना अच्छी तरह से वो हंस भी नहीं सके। राइट। जो टेंशन में होता है ना, वो हंस नहीं सकता है। पर अभी वो हंस रही है, तो मतलब अभी टेंशन नहीं है उसको।
जो टेंशन वाला होता है ना, उसका फेस एकदम सीरियस हो जाता है। कुछ बात भी नहीं करेंगे, कुछ इतना सीरियस होएंगे तो सामने वाला खुद भी डर जाए और वो भी टेंशन में आ जाए। पर हम अगर हंसेंगे, बहुत निखालस रहेंगे, तो सामने वाला भी निखालस हो जाएगा और खुद भी हंसने लगेंगे। तो ये हमारा क्या है, एक दूसरे के ऊपर बहुत असर होता है। इसलिए हम अगर खुद निखालस रहेंगे, हंसते रहेंगे, तो सामने वाले को भी आपका प्रभाव पड़ेगा। दादा भगवान दिन रात कैसे हंसते थे, सबको हंसाते थे, तो हम सब लोग धीरे धीरे हंसमुख बन गए। अभी तो सीरियसनेस क्या होती है, सीरियस क्या होता है, हमको पता भी नहीं। फिर चाहे कितना भी पहाड़ टूटे ना, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होगा, पर फिर दादा का ज्ञान पूरा हाजिर हो जाता है। फिर वो सब पता चलता है कि क्या है, किसको गुस्सा आया, कौन सीरियस हो गया, फिर एकदम ध्यान हाजिर हो जाता है। तो ये प्रैक्टिस धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो दादा की साइंस कैसी है कि आप हर एक संजोग में, हर एक सरकमस्टेंसेस में खुश रह सकते हैं। और उनको अगर फॉलो किया, उनका इंस्ट्रक्शन, सिंसियर रहे, और सिंसियरिटी में आप रहे, तो फिर उसमें एक बहुत बड़ी लॉटरी लगती है। कौन सी लॉटरी लगती है, आपको पता है? बताओ। अगर हम हैप्पी रहेंगे, सिंसियर रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे टुवर्ड्स द स्टडीज, एवरीथिंग, हर एक बात में, हर घर में, अपने फैमिली के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अगर हम अपना एटमॉस्फेयर अच्छा रखेंगे, तो कौन सी लॉटरी लगती है, बताओ। हाँ, बोलो। लॉटरी लगेगी, नहीं लगेगी? श्रेया, लॉटरी लगेगी कि नहीं लगेगी? दाक्ष, हाँ, लगेगी। तो बोलो ना। कौन सी लॉटरी लगेगी? हैप्पीनेस। हाँ, हैप्पीनेस आएगी। और सबसे बड़ी लॉटरी बताता हूं मैं आपको, कि जब हम खुश रहेंगे, सिंसियर रहेंगे, दादा की आज्ञा के हिसाब से चलेंगे, तो आपको पता है पूरे ब्रह्मांड से दादा भगवान, सिमंदर स्वामी और सब शासन देवी देवताओं का आपके ऊपर राजीपा होगा। अभी इतने सब लोगों का आपके ऊपर कृपा बरसे, राजीपा मिल जाए, और आपके ऊपर खूब आशीर्वाद बरसाए, तो कितनी बड़ी लॉटरी मिली हमको। दादा भगवान का राजीपा मिला। હિતાક્ષી બાર રાજીપા એટલે શું? मतलब कि दादा की खुश और आशीर्वाद रहता है। ठीक है, बहुत कैसे अच्छा, दादा? बहुत अच्छा। मतलब दादा भगवान, हम दादा भगवान के राजीपे के लिए तो तरसते रहते थे। हम बार बार ऐसा सोचते थे कि हम क्या करें कि दादा भगवान हम पे खुश रहे। हम तरसते रहते थे। तो हम दादा भगवान की आंखों में देखते रहते थे। तो दादा भगवान को, और धीरे धीरे हम सब दादा भगवान की बातें सुनते थे कि दादा भगवान कैसे राजी होते हैं, उनका राजीपा कैसे मिलता है। तो दादा भगवान बोलते थे कि जो दादा भगवान की आज्ञा में रहता है ना, उसके ऊपर दादा भगवान की खूब आशीर्वाद मिलती है, खूब राजीपा रहता है। वो दादा भगवान ये एक चीज बहुत बड़ी समझते थे कि जो आज्ञा में रहे, तो दादा भगवान की आज्ञा में रहना, दादा भगवान बोले कि अभी जाके सो जाओ, तो ये आज्ञा का पालन हुआ। दादा भगवान बोले कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो वो आज्ञा का पालन हुआ। तो दादा भगवान बोले कि सुबह को उठ के ये सत्साधन करने का, फाइल का संभाव्य निकाल करने का, सबके साथ अच्छी तरह से चलने का, वो दादा भगवान का ये आज्ञा हो गया, और उसको पकड़ लिया। तो दादा भगवान को, आप भले चाहे बताओ कि नहीं बताओ, दादा को हमारा मैसेज पहुंच जाता था, और फिर दादा का राजीपा शुरू हो जाता था। दादा खूब सामने से आके बोलते थे, मजामा छे ने। तो हमको कभी ऐसा दादा बोलते नहीं थे। तो जिस दिन ऐसा दादा भगवान बोले कि केशव मजामा छे ने, तो मैं समझ जाता था कि दादा भगवान आज खुश है। बहुत होने पर कृपा बरसाई है, जो हमसे पूछते कि तू खुश है ना। तो ऐसे सामने से दादा कभी कभी बातें करना शुरू कर देते थे। तो वो क्या होता है, ज्ञानी पुरुष का राजीपा। राजीपा यानी वो हमारे पे खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके कहने के मुताबिक चलते हैं, उनकी आज्ञा से चलते हैं। दादा भगवान ने एक बार बोल दिया कि सुबह को सूर्य देवता के पहले उठना चाहिए, तो हमने उस दिन से ऐसी गांठ बांध ली कि कुछ भी हो जाए, सूर्य देवता जब उगते हैं, उठते हैं, उसके पहले हम उठ जाना चाहिए। क्योंकि दादा भगवान ने ये आज्ञा दी है, बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि इतना बड़ा सूर्य देवता हमारे से पहले उठ जाता है, तो तुम उनके बाद उठते हो।
उनका डिसरिस्पेक्ट करते हो। तो ये बात जिस दिन से समझ में आ गई, फिर तो दादा ने एक बार पूछा कि तुम कितने बजे उठते हो। मैं बोला दादा सुबह को 5:30-6 बजे सूर्य देवता के उगने से पहले उठ जाते हैं। बोला बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इवन तो वेकेशन में केशव दादा, इवन यस, वेकेशन। एक बार हमारा निश्चय हो गया, तो क्या वेकेशन में सूर्य देवता नहीं नहीं निकलते हैं? मालूम नहीं निकलता है कि नहीं, तो चलो। वो निकलते इनको बताओ। वो तो हर रोज निकलते हैं। हाँ सर, शायद वेकेशन में नहीं निकलते होंगे सूर्य देवता, वो भी वेकेशन में हो जाते होंगे। नहीं नहीं, वो तो हर निकलते रोज हैं। निकलते हैं। निकलते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए कि पूरे 365 दिन सूर्य देवता निकलते हैं, उठते हैं। तो हमको कैसे, क्योंकि हमको उनका राजीपा चाहिए, उनकी कृपा चाहिए। तो जिनको जैसे मम्मी डैडी है, बरोबर, तो उनका राजीपा कैसे मिलता है? अगर आप मम्मी पापा की बात सुनो, मम्मी बोले कि बेटा अभी ऐसा करो कि तुम अभी खाना बनाने चली जाओ, तो बोले नहीं मैं तो थकी हुई हूँ, मैं नहीं करूंगी, मैं अभी स्कूल से आई हूँ। तो फिर क्या होता है मम्मी को कि मैं तो सुबह से 5 बजे से उठ के रात को 11 बजे तक आपकी सेवा करती हूँ, सबकी सबकी एक एक बात का ख्याल रखती हूँ, खाना संभाल के खाती हूँ, सबके कपड़े रखती हूँ, सब ये करती हूँ। तो एक बार मैंने अगर बोल दिया कि भाई थोड़ा हेल्प करो, तो उस समय आप बोलते हो मैं थकी हुई हूँ। तो क्या होता है, उनका राजीपा नहीं मिलेगा कभी भी। राजीपा कभी मिलता है कि जब भी हम उनके कहने के मुताबिक चलें, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके उनको उनकी तकलीफ क्या है वो हम समझें। जब हम दूसरों की तकलीफ समझेंगे, दूसरों की प्रॉब्लम समझेंगे, तो तभी हमको पता चलेगा ना, तभी हमको कितनी तकलीफ होती है, उनको कितनी तकलीफ होती है। तो हम तो बहुत विचारशील प्राणी हैं। दादा भगवान क्या बोलते हैं कि मनुष्य अवतार बहुत सर्वश्रेष्ठ अवतार है, विचारशील प्राणी है। तो उसको हर एक बात समझ में आती है कि अभी मम्मी को तकलीफ हो रही है, अभी मेरे भाई को तकलीफ हो रही है। तो किस तरह से अपने को घर में रहना चाहिए, किस तरह से हमारा आदर्श व्यवहार होना चाहिए, ये सब हमको अभी से ही, हमको दादा बचपन से जब आपकी उम्र के थे ना तब से सब सिखाते थे। और धीरे 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 एक दिन तो एक दिन तो पता है क्या हुआ। तो हम सब जब दादा के कहने के मुताबिक चलते थे ना, तो सबकी हमारे पे बहुत आशीर्वाद रहती थी, सब लोग हमारे पे बहुत खुश रहते थे। तो एक बार हमारे मम्मी ने दादा भगवान से सवाल पूछा। पता है कैसा सवाल पूछा, मेरे को आज तक याद है और बार बार याद आता रहता है। तो मम्मी ने, मेरी मम्मी ने दादा भगवान से पूछा कि दादा भगवान, आप हम में पूरे घर में, हमारे घर में 8 भाई है, एक बहन है, 8, और सब इतने सारा परिवार हमारा सब साथ में रहता है, तो सब लोग केशव को क्यों इतना प्यार करते हैं? क्या सवाल पूछा? केशव भाई कि को सब सब लोग लोग क्यों प्यार करते हैं? इतने सारे भाई है, दूसरों को नहीं इतना प्यार करते, केशव को क्यों प्यार करते हैं? तो पता है दादा भगवान ने क्या जवाब दिया? तो दादा भगवान ने, मैं वो बात बताता हूँ कि कृपा क्या काम करती है। तो दादा भगवान ने मेरी मम्मी को जवाब दिया, क्योंकि दादा भगवान के 4 हाथ केशव के ऊपर है, वो मैं आज तक नहीं भूला। तो मेरे को पता चला कि दादा भगवान के 4 हाथ होने की वजह से ही सब लोग मुझे प्यार करते, मेरा तो इसमें कुछ भी नहीं है। क्योंकि ज्ञानी पुरुष का राजीपा मिल गया, ज्ञानी पुरुष की कृपा मिल गई, ज्ञानी पुरुष हमारे पे बहुत खुश हो गए, तो चारों तरफ से सब लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको लव करेंगे, आपकी बहुत बड़ा सम्मान करेंगे। तो उस दिन से हमको पता चला कि जब हमारा व्यवहार सिंसेरिटी से भर जाता है, हमारा व्यवहार आदर्श हो जाता है, जब हम बहुत अच्छी तरह से अपना जीवन निकालते हैं, जिसको दादा भगवान आदर्श जीवन बोलते थे, ताकि, और दूसरे की तकलीफ क्या है, दूसरे को सुख देने के बारे में हम सोचते थे, तो वो दादा की जो सब बातें हम सुनते थे, तभी दादा भगवान का राजीपा मिलता है। ए केशव दादा, हाँ दादा। आपने बोला दादा का 4 हाथ, तो वो मालूम हाँ, समझ में नहीं आया हमको। इतक्ष और दक्ष और श्रेया, 4 हाथ दादा का कैसे हो सकता है? आप बताओ। श्रेया, दो दक्ष, हाथ के इतक्ष, देवों के। तू कहूँ? जी। 2 हाथ दादा के और 2 हाथ सभी देवी देवताओं के। सुना केशव दादा? हाँ
हाँ ओके हाँ। श्रेया, नहीं मालूम अ, बोलो, नहीं मालूम है। टीचर कुछ पूछती है नहीं मालूम तो बोलता नहीं कि मैम आई डोंट नो, है श्रेया? दक्ष, बोल क्लास में कुछ हाँ, समझ नहीं दो पड़ता तो बोलता नहीं कि मैम आई डोंट नो। प्लीज एक्सप्लेन। दो ओके दादा के केशव दादा, और दो हाथ सारे देवी देवताओं के। केशव दादा सुना दक्ष का आंसर? वो सेम बोला, हाँ। आज नहीं आ रही। ओके ओके, तो बताइए केशव दादा। हाँ हाँ। तो वो राजीपा, राजीपा ऐसे मिलता है कि दादा भगवान का राजीपा, अंदर नहीं बैठे हुए दादा नहीं, भगवान चार हाथ का का राजीपा। है नहीं बात, तुम्हें चार हाथ का है, हाउ कैन बी? दादा का चार हाथ कैसे हो सकता है? हाँ, वो ज्ञानी पुरुष के दो हाथ और दादा भगवान के दो हाथ, जो अंदर बैठे हुए साक्षात परमात्मा है, जो चौदह लोक के नाथ है। और ये ज्ञानी पुरुष के जो हाथ, जो हमको आंखों के सामने दिखाई देते, दादा भगवान एम पटेल के साथ जो ज्ञानी पुरुष बैठे हैं, वो, और ज्ञानी जो अंदर दादा भगवान के अंदर प्रकट हुए हैं, उनके दो हाथ, मतलब पूरा ब्रह्मांड, पूरा शासन, देवी देवता सब आ गए, सबके सबके आशीर्वाद आ गए। ऐसा मालूम, होता है। मालूम पड़ा सबको? तो दैट इज आवर हाँ गोल, ओके एवरी, आपके लिए नहीं, हम सब के लिए वही गोल है। ओके, हम्म। तो जरा हाँ ध्यान रखना, ये एक गोल रखना कि भाई हमारा चार हाथ दादा का मांगता है हमारा सिर्फ। ओके ओके, जय हाँ। सच्चिदानंद। जय ओ सच्चिदानंद। वेरी, आओ भूल गया दीपक दादा, आपको कुछ ऐड करने का है दीपक दादा? हम्म। ये कृष्ण भगवान विष्णु अवतार के चार हाथ होते हैं ना, वो एक हाथ में कमल होता है, दूसरे हाथ में शंख होता है, पंख होते हैं ना, तीसरे हाथ में गदा होती है, और चौथे हाथ में कुछ होता है ऐसा, वो। सुदर्शन चक्र। हाँ, सुदर्शन सुधर। चक्र। वो विष्णु भगवान के उसमें नहीं होता है, कृष्ण भगवान के उसमें होता है, लेकिन ये ये चार भुजा वाला उनका स्वरूप बताया जाता है। और वो चारों हाथ यानी उनकी पूरी शक्तियां हमारे साथ है, उसका मतलब ये होता है। हम वो ढूंढ निकालेंगे, मैंने ढूंढने की कोशिश की, राइट में मिला नहीं मुझे, लेकिन उसका मतलब ये होता है, चारों हाथ का मतलब। कौन का मतलब ऑलवेज रेडी, एंड उनका आशीर्वाद ऐसे हमें मिल जाता है। शंख, हाँ विजयी शंख, हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्ची दादा। श्रेया कीप जय स्माइलिंग। सच्चिदानंद। ओके